بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں اسما مصطفیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما۔ آج کا پروگرام کیا ہے اور ہم کس بارے میں بات کریں اور ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کو کیوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مجھے ایک میسیج آیا میرے فیس بک پیج پہ ایک بچے کے طرف سے، اور اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کا نام لے سکتی ہوں۔ بچے کا نام تھا جلال، اور جلال نے مجھے میسیج کیا کہ میں بیچلرز کر رہا ہوں، بڑی اچھی یونیورسٹی سے بیچلرز کر رہا ہوں، بیچلرز کے دوسرے سال کے تقریباً اختتام پہ یا دوسرے سال میں ہے، اور یہ بتایا کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں جتنا اچھا نہیں ہوں۔ جلال نے اپنے ڈیٹیل میسیج میں بہت بار یہ کہا کہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں، میرے بہن بھائی بہت سپورٹیو ہیں، اور مجھے بار بار بتاتے ہیں کہ آئی ایم گڈ انف، لیکن مجھے اپنی کلاس میں جا کے اپنے رزلٹ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ میں ان جتنا اچھا نہیں ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے شدید ڈپریشن ہوتا ہے، اور بہت بار سوسائڈل تھاٹس میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں فیلئر ہوں اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے، جب میرا کمپیریزن میرے ساتھیوں سے ہوتا ہے۔ جلال جیسا یہ میسیج مجھے پہلی دفعہ نہیں آیا، ایسے میسیجز بہت بار آئے ہیں، اور بہت بار میں نے کوشش کی ہے کہ میری کیپیسٹی میں، میری صلاحیت میں جتنے جوابات ہیں جو میں کر سکتی ہوں میں کر سکوں ان کے ساتھ ایک ورچوئل ریلیشن شپ میں۔ لیکن جب جلال کا میسیج آیا، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ٹیلی ویژن اسکرینز پہ جو دیکھ رہے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ تعلیمی دباؤ کے حوالے سے، مجھے یہ لگا کہ جلال کے میسیج کا جواب مجھے صرف جلال کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ شاید بہت سارے اور جلال ہوں اس ملک میں جنہیں اس سوال کا جواب چاہیے ہو۔ میں چاہوں گی کہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اگر آپ ایک استاد ہیں، اگر آپ ایک طالب علم ہیں، اگر آپ والدین ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس سوسائٹی کے باشعور انسان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہو، کچھ باتوں کا آغاز ہو۔ تعلیمی دباؤ کے خطرات پہ آج ہم بات کریں گے۔ دنیا بھر میں اگر ہم سوسائڈ کی شرح دیکھیں تو وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے اس دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں کوئی انسان کہیں نہ کہیں خودکشی کی موت مرتا ہے۔ یہ گلوبل سوسائڈل فیکٹس ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں، اور 55% وہ لوگ ہیں جن کی عمر 15 سے 44 سال کے بیچ میں ہے۔ دنیا بھر کے نوجوان اس وقت اپنی تعلیم کی وجہ سے ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں، چاہے یہ دباؤ اپنی طرف سے انجیکٹڈ ہو، یا والدین کی طرف سے ہو، یا پھر تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ ہم دباؤ میں بالکل یہ بات نہیں کر رہے کہ بالکل تناؤ نہیں ہونا چاہیے، بالکل دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دباؤ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیں پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر جب یہ دباؤ ہمارے بچوں کو خطرات کی طرف لے کے جانے لگے، اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن آئیے اس پہ ضرور کچھ بات کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور آپ کو پھر سے جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسما، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تعلیمی دباؤ کے خطرات کے حوالے سے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت سارے ہیش ٹیگز نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کے لیے جسٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے لیے جسٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی شاید وہ جسٹس ہمیں مل جاتا ہے، مگر بہت بار اس جسٹس تک پہنچنے میں وقت ذرا طویل لگتا ہے۔ میں اس وقت بات کرنا چاہوں گی 7 جولائی 2019 کی، وہ تاریخ جس دن ثاقب ہکرو، ایک ایسا بچہ، جب سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انعام تھا، پہلی پوزیشن کا انعام تھا، اور دیکھنے میں لگتا تھا کہ بہت ہی زندگی سے محبت کرنے والا ایک نوجوان جس قسم کا ہوتا ہے اس قسم کا نوجوان ہوگا۔ مگر 7 جولائی کو ثاقب کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں اس وقت جوائن کریں گے ثاقب کے کزن فراز ہکرو، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور اس بارے میں ہم سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم فراز۔ جی وعلیکم السلام میم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام۔ بہت شکریہ مائی کزن گیسٹ۔ جی بہت شکریہ کہ آپ اس پہ بات کر پا رہے ہیں، کیونکہ پوری خاندان کے لیے ایک بہت ہی ہلا دینے والا معاملہ تھا۔ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ 7 جولائی کو ثاقب کے ساتھ کیا ہوا۔ جی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 7 جولائی جو ہمارے لیے ایک قیامت کا دن تھا میڈم، اس میں ہم نے صبح دیکھا کہ ثاقب واز ہینگڈ، اور اس کے پاس ایک لیٹر پڑا ہوا تھا 7 جولائی کو، سوسائڈ نوٹ، کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ ان ٹیچرز کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں، جس میں مجھے بار بار فیل کیا گیا ہے، میرے ساتھ فیورٹزم اور ڈسکریمنیشنز اور پرسنل گرج کی وجہ سے، جبکہ میں ڈیزرو بھی کرتا ہوں، مجھے ڈیلیبریٹلی فیل کیا جا رہا ہے۔
साकिब की कहानी फराज कुछ यही थी ना कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत आला नंबर हासिल करते थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में वो कोई एक से ज़्यादा बार फेल हो गए और उसका दबाव इस कदर लिया अपनी शख्सियत के ऊपर कि एक दिन आपने वो देखा जो आपने बयान किया। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि साकिब की जो प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक लेवल थी, स्टडी में तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल थे, लेकिन बाय पर्सनालिटी भी ही वाज वेरी बिनाइन, काइंड, जेंटल और बहुत ही सोशल थे। ठीक है मैडम, तो उसने जो पोजीशंस उठाई हैं तो इससे ही अंदाज़ा हो सकता है कि वो किस टाइप का बच्चा था। जब कोई इतना सोशल होता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब होते हैं, किसी दोस्त को कभी ये हिंट हुई इस तरीके की कोई? बिल्कुल भी नहीं, हमें कभी फील ही नहीं हुआ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ही वुड टेक दैट टाइप ऑफ एक्शन इन हिज लाइफ, क्योंकि वो जब भी गांव आया करते थे, कभी साइबर बुलिंग पे सेमिनार्स करवाते थे, कभी फ्री कैंप्स लगवाते थे, वो इतने एनर्जेटिक और हैप्पी थे, वो तो दूसरों को होप दिलाने वाले बंदे थे ना मैडम। तो एक्चुअली बात ये है कि उसके साथ जो है ना, उसको मेरिट और जो डिस्क्रिमिनेशन पर जो विक्टिमाइज किया गया है ना, तो उसकी वजह से ही, वरना वो जिंदगी से बहुत प्यार करते थे। और फराज साकिब अकलौते थे ना वालिदैन के? ये बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। अकलौता बच्चा बहुत लाडला होता है। साकिब के घर की तरफ से कोई प्रेशर था कि भाई तालीम में आला नंबर हासिल करने बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो तुम कम हो जाओगे, कोई इस तरह का? ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके वालिदीन जो हैं दोनों ही बहुत एजुकेटेड और बाय नेचर सेंसिटिव और काइंड नेचर के थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटे पर कोई प्रेशर नहीं किया हुआ था। ये साकिब का अपना ही शौक था इंजीनियरिंग में। फराज, इसके बाद हमने जैसे सोशल मीडिया पे देखा सबसे पहली बार कि जस्टिस फॉर साकिब का एक हमने हैशटैग के साथ कैंपेन देखी, टेलीविज़न की स्क्रीन पे कुछ बार ये ख़बर चली, लेकिन जुलाई से लेकर अब तक काफ़ी सारे महीने गुजर गए। कोई इंक्वायरी हुई? क्योंकि आप लोग पुलिस तक भी गए, क्या इस पर इंक्वायरी हुई? क्या उन टीचर्स के साथ कोई गुफ्तगू हुई? उन्हें कोई सस्पेंड किया गया या कोई कुछ एक्शन लिया गया है इस बात पर? बिल्कुल नहीं मैम, हमने पुलिस को तो इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट किया, उसके बाद पुलिस का तो कोऑपरेशन हमारे साथ ठीक था, लेकिन यूनिवर्सिटी को हमने काफ़ी लेटर्स लिखे कि आप इंक्वायरी करें, इतना बड़ा वाकया हुआ है। तो अभी तक उन्होंने कोई भी हमें प्रॉपरली इंक्वायरी की कॉपी रिस्पांस नहीं की, बस वर्बली कह रहे हैं कि हमने इंक्वायरी की, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब हमने उनको यूनिवर्सिटी को एक लास्ट लेटर लिखा हुआ है कि आप अगर हमें फेयर इंक्वायरी की कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो भी आपने इंक्वायरी की है, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल इन्वोक द डोर ऑफ कोर्ट। फराज, साकिब के वालिदैन का क्या हाल है? 4 माह, एक नौजवान बच्चे का इंतकाल। बस मैं क्या बताऊं, एक बेटा था, उनके सपने थे, उनकी उम्मीद थी कि क्या कंडीशंस होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब जिंदा लाश पड़े हुए हैं, उनका कोई भी मतलब, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी। अभी उसके अबू ने उसकी मेमोरी में एक ट्रस्ट चलाना शुरू किया है, सिंध साकिब ट्रस्ट क्लिनिक, जो साकिब का अपना ख्वाब हुआ करता था। फ्री क्लिनिक शुरू की है, जहाँ हम ये दुआ करते हैं कि खुदा ताला उनको सब्र दे, जहाँ हम ये दुआ करते हैं कि साकिब तो चले गए, साकिब के वालिदैन को, आप सबको, तमाम रिश्तेदारों को इंसाफ मिले, लेकिन वहीं पे मज़ीद गुफ्तगू करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फराज इस बारे में आज फिर गुफ्तगू करने के लिए। आपके लिए आसान नहीं होगा, पर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना नज़रिया एक बार फिर बयान किया। एक ब्रेक लेंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम की वजह से जो दबाव है, तालीम के प्रेशर की वजह से जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, उसके हवाले से इस वक्त मुझे मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सईदुद्दीन साहब ने, जो कि चेयरपर्सन है मैट्रिक बोर्ड के। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं राफिया मुदस्सिर, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और माजी में कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड रही हैं। शुक्रिया राफिया साहिबा। आप दोनों से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम जब तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, और हम खाली पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये ट्रेंड देख रहे हैं, ख़ासतौर पे उन ममालिक में जो कि बड़े डेवलप ममालिक हैं, जिनका ज़रा स्ट्रिंजेंट एकेडमिक प्रोसेस है, स्ट्रिंजेंट एकेडमिक तरीका है, कि इतना दबाव बच्चों के ऊपर कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती, हमारे सामने जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो सिर्फ वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये शरह जो इतनी बढ़ती चली जा रही है और बच्चों पे जो इतना दबाव है, क्या कर रहे हैं तालीमी इदारे जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? ये स्ट्रेस इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स में और टीचर्स में रियलाइजेशन नहीं होती और स्टूडेंट भी रियलाइज़ नहीं करता कि उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो इतना पढ़ सकता है, उसकी एक मेमोरी है। तो जब हम बच्चों पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि उसको A1 आना है, आई मीन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम कहते हैं कि बस आपको, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब लोग A1 आ रहे हैं तो आप कैसे B में आ सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इन बिल्ड हर बच्चे की जो बायोलॉजी है या वो माइंड पावर है या मेमोरी है वो डिफरेंट होती है। तो हमें रियलाइज़ कराना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी ये है, हम इसको पढ़ा रहे हैं तो हम इससे उतना ही तवक्का करें जितना ये वो कर सकता है। क्योंकि देखें हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है। पूरी सोसाइटी, ये कराची का मैं चेयरमैन हूँ, बिल्कुल पोलराइजेशन है, बहुत पोश एरियाज़ हैं, बहुत गरीब एरियाज़ हैं, जो 1300-1500 रुपये फ़ीस भी कहते हैं बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप इसको O लेवल से कंपेयर करें तो हम 1300 रुपये पर मंथ पूरी इम्तहान की फ़ीस लेते हैं और वो O लेवल वाले 13,000 या 14,000 रुपये पे फीस लेते हैं। तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। आपने जो पॉइंट बताया, आपने कहा कि तालीमी इदारे जो भी करें, उस्ताद उस इदारे में और घर पे बैठे वाला पेरेंट शायद ज़्यादा इन्वॉल्व है उस दबाव को डालने में। राफिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन तालीमी निज़ाम भी तो ऐसा है ना, अगर मेरे बच्चा का A नहीं आया या A+ नहीं आया, चाहे वो कैम्ब्रिज में चाहे वो मैट्रिक सिस्टम में है, तो वो लूज़र है क्लास का। तो माँ बाप ने तो प्रेशर डालना है, क्योंकि उन्हें पता है कि निज़ाम ऐसा है कि उस निज़ाम से मेरा बच्चा नहीं निकल सकेगा। जो सिस्टम हमारा है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद था। इट वाज अ फैक्ट्री मॉडल बेसिकली के बच्चे जो हैं ये पास आउट करें तो उन्हें ये नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। अब जिस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन में इस वक्त, उसमें ज़्यादा ज़रूरत ये है कि बच्चों के स्किल्स पे फोकस किया जाए और बच्चों को वो मार्जिन और अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे मैं भी अपने इदारे के थ्रू यही करती हूँ कि बच्चों को हेल्प करती हूँ कि वो अपने पोटेंशियल को, जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि बच्चों को जो है जैसे वो सेकेंडरी स्कूल में आएँ वहीं से उनका पोटेंशियल क्या है और आर्ट्स और स्पोर्ट्स और ये वाली सारी चीज़ें जिसको हम डिस्करेज करते हैं, बिल्कुल, मतलब गिनती के 3 या 4 प्रोफेशन है, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या MBA कर ले तो बिजनेस में चला जाए। तो ये रुझान जो है चेंज करने की ज़रूरत है और ये कंपटीशन है। मुझे याद है मैंने अपने मैट्रिक के इम्तिहान कैसे दिए, रट्टा लगा लगा के। कॉन्सेप्ट ये था जितनी शीटें भरोगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट थे ना। जी बिल्कुल। तो क्या हमारा मैट्रिक बोर्ड इस पे सवाल कर रहा है कि भाई हम किस दुनिया में बैठे हैं? नहीं, देखें डेफिनेटली ये काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। हमने मॉडल पेपर भी 2 साल पहले चेंज किए हैं इस काफ़ी सालों के बाद, और हम रोड लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आ गए हैं। लेकिन देखें, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को रोड लर्निंग से हट के क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी फेल होने की रेशो भी बढ़ेगी। अभी जो इसका मतलब है कि मेरा सोचने वाला, आप कह रही हैं, तो सर हमारी बड़ी लंबी डिबेट होगी, आप कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने तालिब इल्म को सोचने पे मजबूर कर दिया तो मेरा निज़ाम ऐसा है कि वो सोचने वाले तालिब इल्म को फेल कर देगा। नहीं, देखें आप ना कहीं तो उसको चेक लगाने पड़ेंगे। जब आपके कहने का मकसद तो ये हो गया कि बस बच्चों को पढ़ाएं और इनको सोसाइटी में भेज दें। देखें, आप कहीं चेक लगा के ये देखेंगे कि ये बेहतर है, ये उससे बेहतर कम करेंगे, लेकिन किसी एक लेवल पे करेंगे। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पे जाएं, सर फिनलैंड कैसे कर रहा है, सर सिंगापुर कैसे कर रहा है, वहाँ के फिनलैंड का तालीमी निज़ाम हम सब जानते हैं। आपने जी आपको ये भी पता होगा कि फिनलैंड के
आबादी कितनी है, कराची से कम है। सर आबादी की बात नहीं हो रही देखिए, सर, आबादी बात वसाइल ये के हो साथ रही है कि मैंने ये देखा कि दुनिया के एक ऐसा मुल्क जहाँ का तालीमी निज़ाम बड़ा रेवोल्यूशनरी है, जो ग्रेडिंग सिस्टम पे बिलीव नहीं करता, वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए अमेरिका जाके फिनलैंड में बैठ रहा है और देख रहा है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, मैं अपने बड़े सिस्टम पे इसको इम्प्लीमेंट करूँ। आपकी बात बहुत बेहतरीन है जब आप कह रहे हैं रट्टे से हटा के सोच पे लाएंगे, लेकिन ये कह देना अच्छा बेटा लेकिन तुम सोचोगे ना तो फेल हो जाओगे। नो डाउट आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को हर बच्चे की नेचुरल एबिलिटी एक जैसी नहीं है। आप जब फिनलैंड की बात कर रही हैं तो ज़रा देखें कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हम यहाँ जो हमारे रोड नेटवर्क और हमारी फैसिलिटीज़ दिगर क्या हैं, अब फिनलैंड की आबादी दुनिया के 15-16 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी कराची से कम है। तो अब आप ये समझते हैं क्या उनके वसाइल और हमारे वसाइल एक हैं? मतलब यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। मैं वसाइल बिल्कुल मान रही हूँ, पर सर मैं यहाँ पे ये हमारी ताकि आपके स्कूलिंग सिस्टम जो है वो उनके अंदर टीचर सेंट्रिक एजुकेशन है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। 10 स्टूडेंट बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपके एक क्लासों में 50-50, 60-60 बच्चे हैं। ये प्राइवेट स्कूलों ने एक अच्छा माहौल दिया है कि जिसमें बेहतर है। गवर्नमेंट के पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है, तो डेफिनेटली हमें इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करें, तो आखिर आप ये इंजीनियरिंग मेडिकल में सिलेक्शन किस बुनियाद पे करेंगे? मैं चाहती हूँ कि इसका मतलब है ओपिनियन लीडर्स इसको बदलें, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो भी इसी निज़ाम पे चल रहा है, और ये मेरा शिकवा है। नहीं, क्वेश्चन शुड बी एनकरेज, वी हैव टू चेंज द असेसमेंट सिस्टम। जब तक आपका एग्जामिनेशन असेसमेंट से रिसोर्सेज हम वसाइल पे घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये मामला रिसोर्सेज का नहीं है, ये मामला सोच का है। आपका बहुत शुक्रिया सईद साहब, भी है, लेकिन सोच पहले आएगी सर, उसके बाद रिसोर्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच राफिया, थैंक यू सईद साहब। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हर पहलू से गुफ्तगू करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, माँ बाप के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, असातिज़ा पे गुफ्तगू होनी चाहिए, तालिब इल्म पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए। इन तमाम एंगल से कॉन्वर्सेशंस करेंगे। देखते रहिए आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम बात कर रहे हैं तालीम की वजह से पैदा होने वाले दबाव पे। मेरे साथ 2 तालिब इल्म मौजूद हैं, मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर में हैं। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ हैं सिमरा कैसर शेख, अस्सलाम वालेकुम सिमरा, और सैयद हसन मेहदी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोनों के? ठीक ठाक। यू डोंट लुक स्ट्रेस्ड आउट। कभी एग्जाम्स नहीं है, अभी एग्जाम्स नहीं है। जब एग्जाम शुरू होते हैं तो सब वो कहते हैं ना कि एंजाइटी, स्ट्रेस और एग्जाम, जब ये तीनों लफ्ज एक जुमले में आने लगे तो इसका मतलब है कि परेशानी होने लगती है और चीज़ें गड़बड़ हैं, इनके बारे में कुछ करना चाहिए। कभी गुजरे हो आप? हम अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि जब वो इम्तिहान करीब आता है या वो प्रेशर करीब आता है या वो सब्जेक्ट करीब आता है जिसमें हमारा इतना लगाव नहीं है, क्या होता है? व्हाट डू यू गो थ्रू? I go through a lot of stress. So what I do is जब मेरे एग्जाम्स हो रहे होते हैं, I know what I want to do. लेकिन and I know that I can do it. लेकिन जब टाइम करीब आता जाता है मैं तब तक कुछ करती नहीं हूँ। लास्ट मिनट हम लटकाते हैं चीज़ों को और फिर कोशिश करते हैं। Then what happens is I've been through a panic attack, I've been through an anxiety attack, and then I know कि अब मुझे अपने आप को उस जोन में लाना है कि अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि अब और वक्त नहीं ज़ाया कर सकती। दिस इज़ लाइक द लास्ट पार्ट। तो फिर मैं आती हूँ जोन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता। अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं 3rd ईयर में, तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, होता है बट उस लेवल पे नहीं होता। When I was doing my O levels and A levels, तब शायद तब ज़रा सा नहीं, तब बहुत ज़्यादा था। तब स्कूल की तरफ से प्रेशर था, माँ बाप की तरफ से प्रेशर था, यूनिवर्सिटीज़ में जाने की का प्रेशर था कि ग्रेड नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? नो यूनिवर्सिटी इज टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स लेस देन B, लेस देन A's, सो लाइक बच्चे को एक स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे यही करना है। मतलब एक वो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि मुझे एक A लाने की मशीन बनना है, तो उसी से मैं आगे जाऊँगा, वरना मैं कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट इट, तो मुझे होता है कि नहीं, इट वाज ओके, लाइक इवन इफ यू गेट अ B, अगर आपका B आए या A आए तो बहुत अच्छी बात है, B आए या C आए तो देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे लाइफ गोज ऑन। सो लाइक लेकिन माँ बाप का जो डर होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली, उस पे क्या कहोगे आप? फिर हाउ इज इट ओके, आपका B आ गया, आपको आला यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला माँ बाप की नज़र से, फिर कैसे उन्हें समझाएं कि यार इट्स ओके?
टू बी ऑनेस्ट हम माँ बाप को तो समझा लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, जो जब वो सवाल करते हैं देन फिर हमारे माँ बाप को नहीं पता होता कि अब क्या बोलें, अब उनको क्या बोलें कि हम तो सही हैं अपने बच्चे के साथ इस यूनिवर्सिटी में। लोगों का जो एक परसेप्शन होता है ना वो बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कहीं कहीं शायद हमें सिमरन ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो दुनिया देखी है या आप लोग जो दुनिया देख रहे हो वो हमारे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने नहीं देखी है ना। उनको शायद बहुत सारे ऐसे कामयाब लोगों के बारे में नहीं पता था जिन्होंने आज तक अपनी तालीम पूरी नहीं की। मैं ये नहीं कह रही कि तालीम ज़रूरी नहीं है, मैं इसकी बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ, लेकिन शायद ये रियलिटी पता होना कि हाँ जो तालीम याफ्ता था उसकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वो जो आला यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ से निकाला गया उसकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं हुई। कभी कभी ये आगाही हमें बेहतर फ़ैसले करने पे मजबूर करती है, रीज़न देती है कि हम बेहतर फ़ैसले करें। तो मैं आप नौजवानों से सिर्फ ये कहूँगी बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक कि हमारे माँ बाप को वो सब नहीं पता जो हमें पता है, और हमें वो सब नहीं पता जो हमारे माँ बाप को पता है। इसीलिए कभी कभी जब लगे कि दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक अपने आप को ये समझाना कि इट्स ओके, दे डोंट नो व्हाट आई नो, यू नो। उन्होंने वो नहीं पढ़ा, उन्होंने वो केस स्टडीज़ नहीं पढ़ी जो हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने वो रोल मॉडल्स नहीं देखे जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए बेहतरी की, लेकिन जब दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो शायद अपने आप को ये समझाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप मेरी हर चीज़ तस्लीम करें, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आपने कोई गलत कदम इसलिए नहीं उठाना क्योंकि मैं उनको नहीं समझा सका, क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड रिश्तेदारों को नहीं समझा सका। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे कि अगर आप एक तालिब इल्म हैं और आप इस दबाव से गुजर रहे हैं, कैसे जांच सकें कि कौन सा दबाव अच्छा है और कब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। एंड एज स्टूडेंट्स व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू कैन डू जिससे आप इस दबाव पे ज़रा काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम बात कर रहे हैं तालीमी दबाव, तालीमी प्रेशर की वजह से बच्चे किन चीज़ों से गुजरते हैं, तालिब इल्म किन चीज़ों से गुजरते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सिमरा और हसन। हम ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि शायद कुछ स्ट्रेस अच्छा भी होता है, इज़ दैट राइट? हाँ, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हमारे पास एक स्ट्रेसोमीटर है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये है कि ज़रा थोड़ी समझ आ जाए कि कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, कहाँ पे हमें इसके बारे में परेशान होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक एक स्टेज दिखाऊंगी और पूछूंगी कि कौन सा वाला है। सो अगर आप देखो, सबसे पहले है जोन 1 बिल्कुल नीचे जो नीले रंग का है। कैन यू सी दैट? या किसी भी स्क्रीन पे देख लो। नीले रंग का जो जोन है जो कि यू नो थोड़ा सा स्ट्रेस है, यूर चिल्ड आउट, ये अच्छा है या नहीं अच्छा? आई थिंक इतना तो होना चाहिए, इतना तो शायद होना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रेस में हो क्या रहा होता है, एग्जाम आ रहा है, मैंने पढ़ना है लेकिन मैं नहीं पढ़ रही। समथिंग जो सिमरा जिससे गुजरती है। हाँ बिल्कुल। सो इसकी कॉन्शियसनेस होना कि ये स्ट्रेस जरा थोड़ा फजूल है, करना है लेकिन नहीं होता, कुछ नहीं पा रहे। अगर उसके बाद आप हरी पे चले जाएं जो सब्ज नजर आ रहा है, स्ट्रेस जोन 2 जिसमें लिखा हुआ है नाइस स्ट्रेस, ये वाला कौन सा स्ट्रेस होगा जिसमें आप बिल्कुल चिल्ड आउट नहीं है लेकिन इट्स द गुड स्ट्रेस? इट्स द गुड स्ट्रेस कि आपको पता है कि अब वक्त आ गया, थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए, नहीं किया तो फंसेंगे। दिस इज लाइक असाइनमेंट देने से 2 दिन पहले का जहाँ रिवीजन शुरू हो गई पे एग्जाम है, असाइनमेंट है, तो अब मतलब एक दिमाग हो गया है कि अब स्टार्ट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ये वाला स्ट्रेस। और इसमें हम कुछ कर भी रहे हैं, इसमें कुछ स्टार्ट कर दिया, असाइनमेंट देना है तो करना शुरू कर दिया है, एग्जाम होना है तो वो रिवीजन शुरू हो गई है। उसके बाद तीसरा जोन आता है जिसके अंदर लिखा हुआ है ओवर स्ट्रेस्ड। क्या डिफरेंस है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ, क्या लगता है? ये भी मेरी ही सिचुएशन है। तो मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ जब मुझे होता है कि आप कुछ कर लेना चाहिए, ये मेरा नाइस स्ट्रेस है कि यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ओवर स्ट्रेस मेरा तब होता है जब मुझे पता होता है कुछ करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पा रही होती, और उसके बाद उसमें मुझे और स्ट्रेस होता है और उसमें मेरा काम भी नहीं हो रहा होता। आई थिंक इसके अंदर बहुत बड़ा एक हाथ अपने दिन को डिवाइड करने का या अपने काम को डिवाइड करने का। पे जरूर आएंगे, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये वो ओवर स्ट्रेस होने का मतलब ये जब भी लगे ना अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है,
وہ ایک موقع ہے جب اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ذرا کانشیس ہو جانا چاہیے, کیونکہ زندگی میں انسان کوئی بھی منفی قدم تب اٹھاتا ہے جب اس کو لگتا ہے چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. سو اگر آپ اور آپ کے ساتھی کبھی اس چیز سے گزر جب انہیں لگے ہم پاور لیس ہو گئے ہیں, اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا, اس کا مطلب ہے کانشیس ہو جانا چاہیے. اس کے سائنس کیا ہے؟ اریٹیبل ہو جانا, ناراض ہو جانا, پریشان ہو جانا, کھچ کھچ ہونا شروع ہو جانا. اور جو آخری اسٹیج ہے which is called stressed out, یہ کیا ہے؟ This is bad. This is bad. This is really bad. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا پریمیٹیو دماغ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. یعنی وہ دماغ جب ہم شکاری ہوا کرتے تھے اور ایولیوشن سے اس دور سے گزر رہے تھے, اور اس دماغ نے سیکھا ہوا تھا یا لڑو یا بھاگ جاؤ, either you fight or you take a flight. جو خودکشی کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فلائٹ ہے, یہ نجات ہے, اس سے بھاگ جاؤ, اس طرح مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں اس سے مسائل ختم نہیں ہو سکتے. جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے شاید کسی حد تک عارضی طور پہ, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ, حسن آئی لو واٹ یو سیڈ, ذرا بتاؤ کیا پلان کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے اف یو ہیو این اسائنمنٹ ڈیو جو ایک ہفتے میں آپ کو دینا ہے, تو آپ لاسٹ دن پہ آ کے رات میں 8 بجے وہ اسائنمنٹ شروع نہ کرو. اوبویسلی وہ آپ کو ریڈ والا فیز آ جائے گا, اوور اسٹریس والا, اینڈ دین یو ول بی لائک کہ آپ یا تو دو یا نہیں دو, اینڈ پریشر بڑھتا رہے گا. اگر وہ اسی اسائنمنٹ کو آپ ایک ہفتے میں ڈیوائڈ کر دو تو وہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا, آپ کے دماغ پہ اسٹریس بھی نہیں آئے گا, اینڈ دین یو ول گیٹ اٹ ڈن. یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ آپ کا غلام ہے یا آپ اس کے غلام ہیں؟ میں اس کے غلام ہیں. دونوں. یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ ہمارا غلام ہو سکے. سو آج کل کے دور میں اگر ہم اس کو کمانڈ دے دیں اور اس کے اوپر ریمائنڈر ڈال لیں اور یہ ہمیں بز کرتا رہے اور ہم اس کو سنوز نہ کریں, تو آئی تھنک اس سے بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں. دیٹس سیکنڈ نمبر کہ پلاننگ بہترین ہو. کھانے میں ڈائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں یا کچھ بھی اچھا کھا لیتے ہیں؟ اور ایکسرسائز کے حوالے سے ایکسرسائز کرتے ہیں, مطلب ٹرائی ٹو بی ہیلدی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سمرا پروگرام میں آنے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا بھی آنے کے لیے. تھینک یو فار واچنگ دا شو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ تعلیمی دباؤ ہمارے بچوں کو کہاں تک لے کے جا رہا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خوش قسمت ہیں, ابھی تک ایسا نہیں ہوا, خدا کرے آئندہ کبھی ایسا نہ ہو, لیکن یہ کام صرف دعا سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی. ہمارے تعلیمی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ دقیانوسی سسٹم جو کہ انڈسٹریل ایج کی پیداوار ہے, کیا وہ آج کی نالج ایج میں چلتا ہے یا نہیں چلتا. گوگل, نیٹ فلکس جیسے اداروں نے ڈگری کا کرائٹیریا ختم کر دیا ہے. دس ٹیلز اس سم تھنگ امپورٹنٹ اباؤٹ دا ورلڈ. جو دنیا آنے والی ہے وہ میں نے کبھی سوچی نہیں, کبھی دیکھی نہیں, تو میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے بہترین آگاہ اس کے بارے میں تیار کر سکتی ہوں. میں اکیلے نہیں کر سکتی. یہ ایک پارٹنرشپ ہوگی جس میں طالب علم, استاد اور پیرنٹ مل کے ڈیزائن کرے گا وہ فیوچر, کیونکہ یہ فیوچر وہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو. ہم آج اپنے بچوں کو شاید ایک ایسے مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سو تیاری تو ذرا ادھوری رہ گئی اگر صرف ایک جانب سے ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.